Hello student, welcome back to our grammar class. I hope you all are happy and safe at your home. My dear student, today we are going to start our second part of prepositions. Okay, so listen to me carefully. Let's get started. Inside. Inside means it is used when one thing is on the inner side ऑफ अनदर थिंग कि दूसरी साइड के जो उसके अंदर जो पार्ट होता है वहां हम इनसाइड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन आर इनसाइड द कार. बच्चे कार के अंदर हैं. नाउ नेक्स्ट इज आउटसाइड, बाहर की साइड. इट इज यूज्ड व्हेन वन थिंग इज ऑन द आउटर साइड ऑफ अनदर थिंग. लेट अस सी एग्जाम्पल. ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर कि वो घर के बाहर इंतजार खड़ा हो रहा है. सॉरी, कि वो घर के बाहर खड़ा हो रहा है. नाउ बिसाइड, के साथ में. इट इज यूज्ड व्हेन वन थिंग इज वेरी नियर टू अनदर थिंग कि एक चीज दूसरी चीज के पास हो तो वेयर वी पुट बिसाइड प्रपोजिशन. लेट्स सी द एग्जाम्पल. ही वॉज सिटिंग बिसाइड्स मी कि वह मेरे साथ बैठा हुआ था. नाउ सेकेंड काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन ऑफ टाइम. So let us see what is preposition of time. This preposition signifies the relationship of a noun or a pronoun. कि जो ये prepositions होती है वो signify करती है noun और pronoun की relations को with time के साथ. A prepositions of time gives the answer to the questions when का answer इसमें हमें मिलता है. And these are the prepositional words at, in, on, before, after, from, till, by, for, since, about, during, between, etc. are prepositions of time. Now I can explain you. 8. It is used to tell us the एग्जैक्ट टाइम ऑफ एन एक्शन कि किस समय पर कोई एक एग्जैक्ट टाइम पे कोई एक्शन हो रहा है. वेयर वी यूज एट प्रपोजिशंस. लेट अस सी द एग्जांपल. ही विल रीच एट AM कि वह एट AM पहुंचेगा. इट इज आल्सो यूज टू टेल द एज एट द टाइम ऑफ एक्शन. और ये हमें एज बताने में, एक समय पर एक एज बताने में भी काम आता है. लेट अस सी. ही जॉइंड द पॉलिटिकल पार्टी एट द एज ऑफ 15. ओके. नाउ अनदर इज इन. It is used to signify periods like year, month, week, season, part of the day. Action may take place anytime within that period. Now say, let us see the example. India got freedom in 1947. The exam will start in January. He will get promoted in a week's time. We will purchase a heater in winter. The children will go to the birthday party in the evening. So these are the example related to in preposition. Now another is on. On यानी पर. It is used with days of week and dates. Action takes place on that particular day or date. कि जो particular day और date होता है और उस टाइम जो एक्शन की जाती है उसके लिए हम on का यूज किया जाता है. Let us see the example. He will arrive on Monday. My birthday falls on 4th August. Now next is before, पहले. It is used to tell the time earlier than the mentioned time कि समय से पहले जो उल्लेख किया गया उस समय से पहले जो काम हो जाता है उसका where we put या where we use before preposition. Let us see the example. He will reach before midnight. Now after, बाद में. It is used to tell the time of action later than the mentioned time. Let us see example. They will go to the cinema after breakfast. Now next is from. Say. It is used to tell the starting time of any action कि किसी भी कार्य का जो starting point होता है टाइम का वहाँ ये यूज की जाती है. It may be an action spreading over a period. Now let us see the example. He will start his preparation from Monday. Next is till, तक. It is used to tell the limit of time up to which the action will take place. कि इसमें एक
टाइम की लिमिट होती है जो एक्शन शुरू होगा. नाउ सी द एग्जाम्पल. ही विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट टिल नेक्स्ट संडे तक, कि वह इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा संडे तक, नेक्स्ट संडे तक. नाउ बाय. By means it's used to any vehicles या any time. Okay, it is used to tell that the action will not go beyond this time. It expresses the deadline. Okay, now let us see the example. We will sign this agreement by Monday. कि मंडे वो वी विल हम साइन करेंगे, ये जो एग्रीमेंट है हमारा वो मंडे तक, मंडे मतलब ऑन मंडे, की मंडे तक हम इस एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे. 4. इट इज यूज टू सिग्निफाई द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एक्शन टेक प्लेस. कि इसका यूज कब किया जाता है, जब किसी के दौरान जो कार्य किया जाता है, जो कार्य होगा. नाउ सी एग्जाम्पल. आई विल गो ऑन ए टूर फॉर ए मंथ, कि मैं एक महीने के लिए टूर जाऊंगा. आई हैव बीन रीडिंग न्यूज पेपर फॉर एन आवर, कि मैं एक घंटे के लिए न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूं. नाउ सिंस इट इज यूज टू सिग्निफाई द स्टार्टिंग टाइम ऑफ ए पीरियड. 4 होता है अपना कि सिग्निफाई द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द विच एक्शन टेक प्लेस, एंड नाउ सिंस इज स्टार्टिंग टाइम ऑफ ए period. Let us see the example. He has been playing cricket since 2 p.m. कि वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है या खेल चुका है. Now around. It is used to express time very near to the time of action. कि जिस कार्य को जो कार्य करेंगे उसके समय के पास का जो उसको एक्सप्रेस करना होता है वो अराउंड का यूज किया जाता है. कि ही विल विजिट योर होम अराउंड 5 PM, कि वह तुम्हारे घर के लगभग 5 बजे के आसपास तुम्हारी विजिट करेगा. नाउ ड्यूरिंग मीन्स के दौरान. इट इज यूज टू एक्सप्रेस द होल पीरियड ऑफ एनी एक्शन, कि जो पूरी एक्शन हो रही है हमारे उस पीरियड को के लिए यूज किया जाता है ड्यूरिंग. लेट अस सी द एग्जांपल. ही रिमेंडेड हिडन ड्यूरिंग वॉर. ओके, नाउ बिटवीन, के बीच में. इट इज यूज टू एक्सप्रेस एनी टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम टू एंडिंग टाइम. और बिटवीन इज आल्सो यूज two persons. Okay, divided any two objects या things between two persons, so we can use between. My lecture will take place between 12 PM and 1 PM. So my dear student, these are the some words of prepositions. Remaining part we will discuss in our next video. Till now, have a nice day.